Dear students, let us continue with our previous lecture, which I explained to you in the previous video, that is nucleophilic substitution reactions of alkyl halides. If we revise what we studied in the previous video, nucleophilic substitution reactions are those which involve replacement of halogen from the alkyl halide with the nucleophile. This is the general reaction. We studied two examples in the previous video. One was replacement of halogen by OH negative. aqueous की वजह से ट्रीट किया था. This was the reaction. We got alcohol. And second was treatment of alkyl halide with sodium alkoxide, NaOR dash. Sodium salt of alcohol. R and R dash may be same, may be different. And in this case, we got ethers. We can prepare symmetrical as well as unsymmetrical ether. R and R dash may be same, may be different. In addition to this, we studied the reaction of alkyl halide with moist silver oxide. Moist silver oxide means silver hydroxide. As well as dry silver oxide. Dry means Ag2O. In this case, we got ether. In this case, we got alcohol. Now, the next nucleophilic substitution reaction is substitution of halogen. This is a reaction. Substitution of halogen by hydrosulfide. Hydroxide is OH negative and hydrosulfide is SH negative. So it is a replacement of halogen by hydrosulfide group. Where from we got OH negative, we got it from KOH. Similarly, where from we will get SH negative, we will get it from KSH. Oxygen and sulfur belong to same family. तो जैसे हमने QH लिया वैसे हम KSH ले सकते हैं और NaSH एग्जांपल में दिया है NaSH. So what we did, we treated alkyl halide with sodium hydrogen sulfide, NaSH, sodium hydrogen sulfide in ethanol water mixture as solvent. Ethanol water mixture as solvent. What happened? We got our SH plus we got NaX. What is this compound? अगर आप इसको देखें ROH, this is alcohol. Here oxygen has been replaced by sulfur, so this is thioalcohol. So we get thioalcohol when we treat alkyl halide with NaSH or KSH. Aqueous ethanolic solution हमने solvent के तौर पे यूज किया. Aqueous ethanolic मतलब ethanol and water mixture यूज. R की जगह आप मिथाइल लगाएं, इथाइल लगाएं, वो आप फिर आगे एग्जांपल्स दे सकते. लेकिन जो जनरल कंपाउंड हमें मिला दैट इज अल्काइल थायो और अल्केन थायो, IUPAC ने बोला. The next substitution reaction is replacement of, this is the reaction, replacement of halogen by mercaptide group. This bond SR is called, this group is called mercaptide. ये वैसे ही वैसे हमने OR की बात की थी, alkoxide. This is alkoxide, this is mercaptide. mercaptide हमें कहां से मिलेगा? RO कहां से मिला था? RO मिला था RONA, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल से. तो mercaptide कहां से मिलेगा? अंडरस्टूड है NaSR से. This is the compound. Sodium mercaptide, Na positive, SR negative. So by treating alkyl halide with
alkyl halide with sodium mercaptide। सिमिलरिटी है बिल्कुल, अगर आपको ये रिएक्शन आता है तो ये भी आएगा। S नेगेटिव और पॉजिटिव, we get RSR, so it is dash plus NaX, मतलब you can prepare what? Thioether. This is called ether, this is thioether। ऑक्सीजन की जगह सल्फर ने ले, जैसे अल्कोहल थायो अल्कोहल, ईथर थायो। इन दिस केस वी गेट थायो ईथर। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल दी है बच्चे, हमने यूज किया इथाइल ब्रोमाइड, दिस इज द सबस्ट्रेट। इसको ट्रीट किया हमने किससे? सोडियम इथाइल मरकैप्टाइड से, NaSC2H5, Na पॉजिटिव, SC2H5 negative. This is carrying partial positive charge, this is carrying partial negative. ये न्यूक्लियोफाइल बनती है, यहाँ अटैक करेगा। What we will get? We get C2H5S C2H5 plus NaBr, sodium bromide. So this is what? Diethyl thioether. We get diethyl thioether. So this was conversion of alkyl halide into thioalcohol, and second was conversion of alkyl halide into thioether. Thioalcohol जब हमने बनाया बच्चे याद रखें, in this case we treated the alkyl halide with, किससे ट्रीट किया बच्चे? We treated the alkyl halide with sodium hydrogen sulfide। जब हमने thioether बनाया, we treated the alkyl halide with sodium मरकैप्टाइड, NaSR। बेसिकली ये जो कार्बन सल्फर बॉन्ड है ना, इसको मरकैप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मरकैप्टाइड। द रीजन। नाउ लेट अस प्रोसीड विद आवर नेक्स्ट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ। इसी में बच्चे यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। चलिए लेट अस, एक तो हमने कर लिया ये कि व्हेन वी ट्रीट alkyl halide with sodium alkyl mercaptide we get ether। There is another way also, this is the second way, how to convert alkyl halide into thioether। ये भी एक तरीका है, by treating alkyl halide with sodium sulfide, alkyl halide with sodium sulfide, Na2S, alkyl halide RX, two molecule will react। This reaction is similar to treatment of alkyl halide with, और आपको याद है बच्चे, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, बिल्कुल रिएक्शन उससे मिलता है। ये सिमिलरिटी उस केस में बने थे ईथर, यहां बनेंगे क्या? थायोईथर, RSR। इन दिस केस वी गेट थायोईथर, RSR। लेकिन इस केस में ओनली सिमेट्रिकल ईथर प्रेपरेशन will be of use। अदरवाइज अगर आप अनसिमेट्रिकल बनाना चाहें तो उसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन जाएगा, यू विल गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। जैसे आप इथाइल और मिथाइल थायोईथर बनाना चाहें, एक साइड इथाइल एक साइड मिथाइल, तो उसमें यू विल गेट मिक्सचर ऑफ इथाइल मिथाइल। इट इज एवरी प्रोबेबिलिटी इथाइल इथाइल से रिएक्ट कर जाए, मिथाइल मिथाइल से रिएक्ट कर जाए, इट इज एवरी प्रोबेबिलिटी। मैंने इसमें समझाया था आपको। सो दिस मेथड इज सूटेबल ओनली फॉर सिमेट्रिकल थायोईथर। Next, very important nucleophilic substitution reaction, substitution of halogen by cyanide। इसमें हम बच्चे alkyl halide को ट्रीट करते with alcoholic solution of potassium cyanide। Potassium cyanide is to be handled very carefully, it is a poison। potassium cyanide से इसको ट्रीट करते। potassium is alkali metal, it is always positive, so cyanide is negative। so cyanide acting as nucleophile attack R। halogen मैंने पहले बताया is carrying partial positive charge, halogen is partial negative, so what do we get? We get RCN plus what do we get? KS। ये बच्चे ये, so this is the reaction, we get alkyl cyanide, alkane nitrile भी कहते हैं इसको, this is also called alkane nitrile। alcoholic solution यूज किया है, alcoholic
अल्कोहल एज सॉल्वेंट कह सकते हैं आप। मिथाइल ब्रोमाइड की एग्जांपल दी है, इथाइल की दी है। इस तरीके से इथाइल साइन, एक चीज इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है इसके नेमिंग में, जैसे ये कंपाउंड है, जैसे ये बनाया हुआ है यहाँ पे, इथाइल क्लोराइड को ट्रीट किया पोटेशियम साइनाइड से, वी गॉट दिस। अब इसका नाम क्या है? अगर कॉमन नेम देना तो फिर बोलेंगे इथाइल साइनाइड। आईयूपीएसी नेम देना तो ये भी नंबरिंग में आएगा बच्चे, बिकॉज इट कंटेन्स कार्बन एटम। जिनके फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम होता है उसको नंबरिंग में लेना होता है। इसका नाम होगा प्रोपेन नाइट्राइड, तो 3 कार्बन है प्रोपेन, और एज फंक्शनल ग्रुप इसका नाम क्या है? नाइट्राइड। दिस इज प्रोपेन नाइट्राइड। दिस वाज conversion of alkyl halide into cyanide, alkyl cyanide. Next one is isocyanide, RNC. पहले बनाया वो था RCN, now it is RNC. कैसे करेंगे बच्चे? We treat alkyl halide with silver cyanide. Now silver carbon bond is covalent. यहां अटैक, जैसे प्रीवियस में हमने क्या किया बच्चे? KCN. It is purely ionic. It is predominantly covalent. Silver carbon bond. Silver is less electropositive metal. Potassium is highly electropositive metal. So in this case, C is negative. In this case, N is not negative. It is carrying lone pair. Lone pair यहाँ भी है बच्चे. But C is carrying formal negative charge. तो अटैक यहाँ से हुआ. यहाँ पे C के ऊपर negative charge नहीं है. तो अटैक lone pair ने किया. In this case, what do we get? We get RNC. प्लस क्या बनेगा? AgX, सिल्वर हैलाइड। सो दिस इज RNC। फर्क देखिए, यहां मैंने पॉजिटिव नेगेटिव लिखा है, यहां नहीं लिखा है। तो लोन पेयर अटैक और पार्शियल पॉजिटिव वो तो है ही है। इस चीज को आपने अपने दिमाग में रखना है कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज पोलर इन नेचर, इट इज पोलर इन नेचर, ये है। उसके बाद क्या है बच्चे? सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाई substitution of halogen by nitride group. नाइट्राइड, जैसे साइनाइड आइसोसाइनाइड होता है बच्चे, वैसे ही क्या होता है? नाइट्राइड। व्हाट इज नाइट्राइड? नाइट्राइड इज ONO, ONO मतलब बाण यहां से बना। नाइट्रो हो गया NO2, यानी कि बाण यहां से बना, N डबल बॉन्ड O, ऐसे बच्चे, तो बाण यहां से बना, है ना। तो यहां पे हम बात करें नाइट्राइड, दैट इज ONO। So let us have this reaction. नाइट्राइड वाला देखते हैं पहले। ट्रीटिंग अल्काइल हैलाइड विद पोटेशियम नाइट्राइड, पोटेशियम नाइट्राइड KONO, K पॉजिटिव, आपको पता है पोटेशियम इज अल्कली मेटल, इट इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इट हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, so it is positive, O is negative, so this is the attack, nucleophilic attack, and we get what? RONO, alkyl nitrite, alkyl nitrite, plus क्या बनेगा बच्चे? KX. It is very interesting that alkyl nitrite has no IUPAC name. They are known only by common name. That is alkyl nitrite. Next is synthesis of nitroalkane. Nitro हो गया बच्चे RNO2 बनाना। फर्क देख लें, RNO2, RNO2, और नाइट्राइड हो गया क्या बच्चे? RONO। दोनों में फर्क देख लें। Alkyl nitrite has only common name. Nitroalkane has only IUPAC name. This is very interesting. इनके सिर्फ IUPAC नेम है, कॉमन नेम है ही नहीं। नाइट्रोअल्केन NO2 बॉन्डिंग N के थ्रू है। तो इसको कैसे बनाएंगे? बाय ट्रीटिंग अल्काइल हैलाइड विद सिल्वर नाइट्राइट, AgONO। बच्चे यहां पे क्या है देखिए, सिल्वर ऑक्सीजन बॉन्ड, वही मैं कहूंगा इट हैज प्रीडोमिनेटली कोवैलेंट, सिल्वर इज अ वेरी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, ठीक है ना। तो फिर अटैक कौन करेगा? ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का लोन पेयर इजीली अवेलेबल है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये अटैक करता है बच्चे यहाँ पे। R पार्शियल पॉजिटिव, X नेगेटिव, क्या बनेगा? RNO2 प्लस क्या बनेगा बच्चे? AgX। So we get nitroalkane. So in this case we get nitroalkane, AgONO, nitroalkane, इसने अटैक किया। For example, ethyl iodide plus silver nitride, we get nitroalkane. Next we have substitution of halogen by amino group. Substitution of halogen by amino group, that is synthesis of amine. Halogen
substitution by amino group, that is synthesis of amine. यानी कि हमने ये बनाना बच्चे. What we have to prepare? We have to prepare amines. Amines तीन टाइप के होते हैं बच्चे, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन. अमीन का जो क्लासिफिकेशन है that is different from classification of alkyl halide. Primary halide RX, secondary halide this one, tertiary halide this one. इंटरेस्टिंग चीज देखें बच्चे, इसमें जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कार्बन टू विच हैलोजन इज अटैच्ड. इफ हैलोजन इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन इट इज प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी कार्बन इट इज सेकेंडरी हैलाइड, टर्शियरी कार्बन इट टर्शियरी हैलाइड. जबकि अमीन का क्लासिफिकेशन है वो है कि नाइट्रोजन के साथ अल्काइल कितने जुड़े, दैट इज ऑन दैट बेसिस. इफ वन नाइट्रोजन एटम इज देयर इट इज प्राइमरी अमीन, टू सेकेंडरी एंड थ्री टर्शियरी. तो इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा डिफरेंट है. दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया. If one hydrogen atom of ammonia is replaced by alkyl group, we call it primary amine. Amines हमने डिटेल में पढ़ने, फिलहाल इतना याद रखो. So now we have how to synthesize amine from alkyl line. RX हम इसमें किससे ट्रीट करते हैं बच्चे? We treat it with ammonia. Ammonia से ट्रीट करते हैं. What happens? Ammonia is a nucleophile, neutral nucleophile. It will attack. Here, what do we get? We get R and nitrogen. नया बॉन्ड बनाएगा बच्चे, एक छोड़ेगा. इट इज न्यूट्रल. नाइट्रोजन अगर नया बॉन्ड बनाएगा, ये बच्चे बनाया, लोन पेयर दे दिया, सपोज इसने नया बॉन्ड बना दिया, इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया. जो अर्लियर हम कर रहे थे वो था नेगेटिव अटैक किया, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल. वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पेयर ले चुका है के से, ऑलरेडी उसको बॉन्ड छोड़ने की जरूरत नहीं है बच्चे, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पेयर ले चुका है, नेगेटिव बनकर अटैक कर रहा है, नेगेटिव चार्ज. तो उसके पास बॉन्ड है, इट हैज द बॉन्ड. इसके पास बॉन्ड थोड़े है, इसके पास लोन पेयर अपना लोन पेयर दे रहा है. इट हैज नो. अगर इसके पास बॉन्ड होता मतलब ऐसे होता फिर बात थी कि इसने पुराना बॉन्ड नहीं छोड़ना था. इट हैज नो बॉन्ड, इट इज यूजिंग इट्स लोन पेयर. व्हेन इट विल यूज इट्स लोन पेयर इट विल कैरी पॉजिटिव चार्ज. इसको H छोड़ना पड़ेगा. अंडरस्टूड है? क्या बनेगा फिर? RNH3 नहीं लिखना बच्चे, RNH2. वी गेट RNH2, दैट इज वी गेट अमीन. प्लस क्या बनेगा बच्चे? अंडरस्टूड है? प्लस बनेगा HX. ठीक है. अब देखें बच्चे एक इंपॉर्टेंट चीज, नाइट्रोजन ने एक साइड अपना लोन पेयर दिया, दूसरी साइड उसको वापस मिल गया. जैसे उसने ये बनाया, सपोज दिस इज द कंपाउंड इट फॉर्म्ड. इधर दिया इसने लोन पेयर R को दिया ना, उधर से इसको H छोड़ के वापस मिल गया. नो, अगेन इट हैज द लोन पेयर. इट मीन इट कैन अगेन अटैक द अल्काइल हाइड्राइल मॉलिक्यूल. इसका मतलब साफ है बच्चे कि जो आपका प्राइमरी मीन बना, अगर मीडियम में अल्काइल हाइड पड़ा है, आपने अल्काइल हाइड एक्सेस में लिया है, तो प्राइमरी मीन जो बना वो फिर रिएक्ट करेगा किससे? अल्काइल हाइड से फिर रिएक्ट करेगा. व्हाट वी गेट? वी गेट सेकेंडरी मीन. ठीक है, प्लस HX. सेकेंडरी मीन अगेन रिएक्ट विद अल्काइल हाइड, वी गेट टर्शियरी मीन. सेकेंडरी मीन फिर अल्काइल हाइड से रिएक्ट करेगा, हमें क्या मिल जाएगा? टर्शियरी. अल्काइल हाइड अगेन रिएक्ट विद क्या बच्चे? अल्काइल हाइड फिर रिएक्ट करेगा इससे, सेकेंडरी मीन से, बिकॉज अगेन इट हैज लोन पेयर. ये देखें बच्चे, इधर इधर से भी दिखा देते हैं. पहले रिएक्ट किया अमोनिया अल्काइल हाइड से, बना प्राइमरी मीन. प्राइमरी मीन फिर रिएक्ट किया अल्काइल हाइड से, बना सेकेंडरी मीन. नाउ दिस इज सेकेंडरी मीन. और यहाँ पे दो इथाइल है, सेकेंडरी मीन इट अगेन हैज लोन पेयर. इसने अटैक कर दिया फिर से. नाउ व्हाट वी गॉट? वी गेट टर्शियरी मीन. आप कहिए लोन पेयर कहां से आ रहा है? एक साइड बच्चे लोन पेयर दे रहा है, दूसरी साइड H से ले रहा है. On one side it is giving, on other side it is taking from H. H छोड़ रहा है, ये H पॉजिटिव, X नेगेटिव, X नेगेटिव. H यहां से H पॉजिटिव निकल रहा है. बॉन्ड वो नाइट्रोजन को देके जा रहा है, लोन पेयर वो नाइट्रोजन को देके जा रहा है. तो नाइट्रोजन का कोई नुकसान नहीं, वो अल्टीमेट वो लोन पेयर वापस मिल गया. नो, स्टिल इट हैज लोन पेयर. फिर क्या होगा? ये फिर अटैक करेगा, अगेन इट विल अटैक, प्लस अल्काइल हाइड. अब लोन पेयर जब देगा, अब इसको मिलने वाला नहीं है बच्चे, H नहीं ना है, अब कार्बन है. अब क्या होगा बच्चे? कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग है, अब मिलेगा R4. 4 अल्काइल हो गए, 4 R4N. अब इसको पॉजिटिव चार्ज लेना ही पड़ेगा.
Now it has the positive charge and X negative. Tetraalkyl ammonium halide, we get salt. Tetraalkyl ammonium halide, फिर से समझा देता हूँ. आपके पास आ गया tertiary amine. Again it react with alkyl halide. फिर से react किया. And what we got? We got R4N. 4 हो गए. अब इसने लोन पेयर दिया, मिला नहीं. जैसे वो H दे रहा था, H है नहीं, इसके पास रिप्लेसेबल. R4N फिर क्या हो गया? पॉजिटिव. और X ये वाला क्या हो गया? नेगेटिव. These are tetraalkyl ammonium salt. ये बच्चे आप इसके साथ इसको कोरिलेट कर सकते हैं विद दिस. आपने इसका नाम सुना होगा अमोनियम हैलाइड, जैसे अमोनियम क्लोराइड है ना, ये इसी का भाई हुआ, बड़ा भाई. अमोनियम H की जगह ली है 4 अल्काइल, NH4 N पॉजिटिव R4, इसी का बड़ा भाई हो गया. तो दिस वाज क्या बचे? रिप्लेसमेंट ऑफ halogen by amino group, synthesis of amines. So in this case we get primary, secondary as well as tertiary amine, and this reaction is called Hofmann ammonolysis of alkyl halide. इसको बोलते हैं, इसका नाम भी है Hofmann ammonolysis of alkyl halide. Now next is substitution of halogen by alkynyl group. Alkynyl बच्चे होता है ये ग्रुप, alkynyl, this group. Substitution of halogen by alkynyl group. alkyne से बना alkynyl group. अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है, टर्मिनल अल्काइंस और एसिडिक इन नेचर. सॉरी, गलत लिख दिया. टर्मिनल अल्काइंस और एसिडिक इन नेचर. टर्मिनल अल्काइन क्या होते हैं? जिसमें ट्रिपल बॉन्ड चेन के एंड पे हो. चेन पे एंड पे होने का मतलब उनके ऊपर एक H है. एक बच्चे नॉन टर्मिनल अल्काइन भी होते हैं, ये इनकी बात नहीं कर रहा, इसमें H है नहीं, तो ट्रिपल बॉन्ड पे H होना चाहिए. दिस इज द कंडीशन. ट्रिपल बॉन्ड पे H होना चाहिए. H नहीं होगा, इट विल नॉट बी एसिडिक. ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे अगर H हो तभी वो एसिडिक होता. क्यों होता? अगर आपको याद है तो 11th में आपने पढ़ा है, ये कार्बन 3 किस्म के होते हैं. कौन कौन से होते हैं? sp हाइब्रिडाइज्ड, sp2 and sp3. Which carbon is more electronegative? sp, because it has 50% s character, it has 33% s character, it has 25% s character. आपको पता होना चाहिए कि s इलेक्ट्रॉन लाई मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस. अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल के न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, that orbital makes but the orbital more, that electron will be making the orbital more electronegative. So this sp carbon is more electronegative. This is sp hybridized. Sorry, this is sp hybridized. Triple bond है ना, double bond हो तो sp2 होता है. It is more electronegative, and hence what happens? It has tendency to withdraw electron from it. It has partial positive. It has partial negative. That is, this hydrogen is acidic in nature. So terminal alkynes are acidic in nature. If we treat these terminal alkynes with strong bases like sodamide, they form salt with sodium, H3. ये चीज हमें चाहिए, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है. ये देखिए लिखा है सोडियम एल्काइनाइड. ये टर्मिनल अल्काइन से ही बनता है बच्चे, ऐसे ये बनता ही नहीं है. टर्मिनल अल्काइन का मतलब है कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला है, उसके ऊपर H होना चाहिए. वो तभी पॉसिबल है अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड एंड ऑफ चेन पे, अगर बीच में होगा जैसे ये, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आने का कोई मतलब नहीं है, दोनों साइड कार्बन है. ये नॉन टर्मिनल अल्काइन है. हमें चाहिए ये वाला. हमने इसको स्ट्रॉन्ग बेस से ट्रीट किया, H को रिमूव करके उसकी जगह क्या लगा दिया? सोडियम. ठीक है. इस वाले रिएक्शन में आपने क्या करना? सोडियम एल्काइनाइड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइन आप बोल सकते हैं इसको. अगर आपको नहीं बोलना है तो, पूरा नाम नहीं बोलना है तो आप बोल सकते हैं सोडियम क्या बच्चे? एल्काइनाइड. इसको ट्रीट करना सिंपल किससे? एल्काइल हैलाइड से. ट्रीटेड विद एल्काइल हैलाइड, इट विल रिप्लेस इट बाय लाइक दिस, एंड व्हाट यू गेट? You get RC triple bond R. So replacement of halogen by alkynyl, उसका बेनिफिट क्या रिएक्शन का? We get higher alkyne. लोअर alkyne से हमें क्या मिल गया बच्चे? higher alkyne. और जितना मर्जी लंबा आप रख सकते हैं. bigger alkyne, smaller alkyne से बन गया bigger alkyne. फॉर एग्जाम्पल देखें ये बच्चे, 3 कार्बन का alkyne
बन गया 4 वाला, 5 वाला बना सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव अनदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप। कार्बोक्सिलेट ग्रुप क्या होता है बच्चे? व्हाट इज कार्बोक्सिलेट ग्रुप? कार्बोक्सिलेट ग्रुप हो गया बच्चे RC डबल O ग्रुप। दिस ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेट। ये कैसे करेंगे? बाय ट्रीटिंग एल्काइल हैलाइड विद किससे? RCOOH, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। अच्छा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन यहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे तो है ही ऑक्सीजन। व्हाट वी गेट? यहाँ पे वो नहीं कर रहा है कि सिल्वर नाइट्राइट, ये उसमें पॉसिबिलिटी है क्या बच्चे? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो वो कर लिया अटैक। यहाँ पे है ही ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ही अटैक करना, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कंपटीशन था, है ना? डोंट कंपेयर इट विद दिस। आपको क्या मिलेगा बच्चे? R, इसको R डैश कर डिफरेंशिएट करने के लिए, R डैश COO, ये R प्लस क्या बना? AgS। रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप। व्हाट इज कार्बोक्सिलेट? दिस ग्रुप RCOO नेगेटिव कार्बोक्सिलेट ग्रुप। कहां से मिला? सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड से, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट इज अदर रिएक्शन। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चे खत्म हो गई यहाँ पे। ऑल द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वी डिस्कस्ड। एक है यहाँ पे ये रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन बाय आयोडीन, RX, लेकिन X की वैल्यू उसने फिक्स कर दी, क्लोरीन और ब्रोमीन। फिंकलस्टीन रिएक्शन भी कहते हैं इसको, बाय आयोडीन, NaI से ट्रीट करना, सिंपल। जो प्रीवियस रिएक्शन की है बच्चे उसमें X कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इस वाले में बेसिकली एल्काइल आयोडाइड हमने बनाना है ना? सो इट इज ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ आयोडीन। आयोडीन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पे आयोडीन एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस क्लोरीन और ब्रोमीन। आयोडीन इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू व्हाट? Cl and Br। I नेगेटिव बोलेंगे हम, I नेगेटिव इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल देन व्हाट? Cl negative better than what? Sorry, Br negative better than what? Cl negative. This is the nucleophilicity order. I negative replaces chloride and bromide. X की वैल्यू यहाँ फिक्स हो गई, it is either chloride or bromide. आयोडीन को तो आयोडीन से रिप्लेस करेंगे। अब अदर रिएक्शंस में क्या है बच्चे? एक तो है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, preparation of Grignard reagent. Grignard reagent is a very important reagent in organic chemistry. Large number of compounds are synthesized from this Grignard reagent. और Grignard reagent का फॉर्मूला बच्चे RMGX, Grignard reagent। सिंपल रिएक्शन है, by treating alkyl halide with magnesium in presence of dry ether। ड्राई ईथर क्यों रखना है? अगर आपने ईथर में वाटर डाल दिया, मैग्नीशियम चूंकि अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो ये एकदम से रिएक्ट कर जाएगा वाटर से। ड्राई ईथर होना चाहिए। ईथर इज ए पोलर सॉल्वेंट, ये बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करेगा। अब पता है मैग्नीशियम कौन से ग्रुप का है? सेकंड ग्रुप का। इसकी बैलेंसी कितनी, ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? 2। इसने क्या किया? इस बॉन्ड को तोड़ा, पोलर बॉन्ड को, और इसके बीच में एंटर किया, एंड वी गेट RMGX, alkyl magnesium। This compound is called Grignard reagent। Grignard reagent की एक खासियत मैं यहीं पे बता देता हूँ बच्चे, आगे जाके आपको पता चलेगी। RMGX, they are highly reactive compounds। Grignard reagent इसमें जब भी अटैक करता बच्चे R करता, एज न्यूक्लियोफाइल करता। इसकी जितने भी रिएक्शन आप देखेंगे उसमें R ने न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक किया है डिफरेंट अदर कंपाउंड्स, एंड इट हैज वेरियस सिंथेटिक एप्लीकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। जैसे R की जगह इथाइल लगा दिया तो बन गया इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इन जर्नल इट इज कॉल्ड एज ग्रिग्नार्ड। उसके बाद बच्चे आ गया रिएक्शन विद सोडियम। अब देखिए बच्चे, एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम। बताओ सोडियम कौन से ग्रुप का है? फर्स्ट ग्रुप का। इसकी बैलेंसी कितनी है? 1। तो ये तो सोडियम जो है ये तो 2 बॉन्ड ही बना सकता है जैसे मैग्नीशियम ने बनाया, RMGX बीच में घुस गया। सोडियम ऐसा नहीं कर सकता। तो सोडियम हैवी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन व्हाट? मैग्नीशियम। ये फर्स्ट ग्रुप में है, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इसने प्रेफर किया हैलोजन को।
पीछे क्या बच गया बच्चे, आर। अब आर क्या करेगा, आर अकेला तो रहेगा नहीं, उसका बैलेंस ही खत्म हुआ है, वो सेकंड आर से रिएक्ट करके क्या बना देगा बच्चे, अल्केन। वी गेट अल्केन, वेरी इंपॉर्टेंट। In this case, we get what? Alkanes. So when alkyl halides are treated with sodium, हमें क्या मिलता है बच्चे, अल्केन। क्या मिलता है हमें? This reaction is very useful for preparing symmetrical alkane. Symmetrical मतलब इसमें आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, RX इसमें दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करने बच्चे RX के, दो सोडियम यूज हुए, क्योंकि मैंने कहा ना दूसरा अल्काइल से वो रिएक्ट करेगा, बनेगा RR प्लस क्या बनेगा, NaX। अब आप कहते हैं नहीं मैंने एक साइड RX लेना है, एक साइड R-X लेना है, तो आपने कोई एक एक मॉलिक्यूल थोड़े लिया होगा, आपने लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिए होंगे, तो देयर इज एवरी प्रोबेबिलिटी कि RX विल रिएक्ट विद RX। एक प्रोबेबिलिटी बच्चे ये भी बनती है कि RX से रिएक्ट करे, एक प्रोबेबिलिटी ये भी बनती है R-X R-X से रिएक्ट करे। किसने रोका है? तो वी गेट मिक्सचर ऑफ अल्केन्स। हमें एक अल्केन चाहिए था RR-, हमें RR वाला ही मिलेगा और R-R- वाला ही मिलेगा, थ्री टाइप ऑफ अल्केन्स। इसलिए वो बोल रहा है कि दिस मेथड इज यूजफुल ओनली फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब हमने एक ही अल्काइल हाइड से ट्रीट करना, हमने डिफरेंट अल्काइल हाइड से ट्रीट नहीं करना, जैसे हम यहाँ नीचे दिखा रहे हैं। इस चीज को अपने दिमाग में रखना बच्चे। तो हियर वी व्हाट वी डू, वी ट्रीट द अल्काइल हैलाइड विद, किससे ट्रीट किया बच्चे, हमने अल्काइल हैलाइड को ट्रीट किया विद सोडियम, और यहां भी याद रखिए बच्चे हमने इस्तेमाल करना है किसका, सॉल्वेंट एज ड्राई ईथर। द ड्राई ईथर इज टू बी यूज्ड एज सॉल्वेंट। ये सोडियम भी आपको पता है वाटर से एकदम से रिएक्ट करता है। सोडियम और मैग्नीशियम में फर्क देख लें बच्चे। मैग्नीशियम जो है उसकी ऑक्सीजन स्टेट 2 है बैलेंस, उसने दोनों बाण बना लिए दोनों से। सोडियम जो है वो एक ही बाण बना सकता था, उसने एक्स को निकाला बिकॉज इट वाज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और पीछे बच गया, उसकी ऑक्सीजन बैलेंस ही कम हो गई, तो कार्बन की बैलेंस आपको पता है 4 होती है, तो उसने फिर क्या किया, दूसरे अल्काइल से बॉन्ड बना लिया। मैं आपको इल्यूस्ट्रेट कर देता हूं, मिथाइल हैलाइड, ये देखिए सोडियम, अब देखिए कार्बन के कितने बॉन्ड रह गए, 3, तो इसके पास क्या ऑप्शन है, ये CI3 कर लेगा, प्लस क्या बनेगा बच्चे, 2 टाइम NaCl, we get alkane। The best method for preparation of symmetrical alkanes, ये बेस्ट मेथड है बच्चे किसकी प्रेपरेशन के लिए, सिमेट्रिकल अल्केन। नेक्स्ट रिएक्शन इज कोरे हाउस रिएक्शन। इसमें सोडियम के बजाय उसने इस्तेमाल किया है बच्चे किसका, अल्काइल लिथियम डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट का। कोरे हाउस रिएक्शन, कोरे हाउस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है दैट इज डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट, ये है। इसको कैसे बनाया वो यहां दिखाया हुआ है ना, हमने इसमें नहीं जाना, हमने इसी पे बात करनी है। डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट, इसको ट्रीट करना बच्चे अल्काइल हैलाइड से। इस रिएक्शन की खासियत क्या है, इसमें भी अल्केन बनते हैं। इस रिएक्शन की खासियत क्या है, इसमें एक आर यहां से आता है, एक आर यहां से आता है, पार्शियल पॉजिटिव, इट इज पार्शियल नेगेटिव। वन आर कम्स फ्रॉम हियर, अदर आर कम्स फ्रॉम हियर। आर एंड आर कैन बी सेम, कैन बी डिफरेंट। एक आर इस कंपाउंड से आना, प्रीवियस रिएक्शन में जो आर आ रहे हैं बच्चे वो दोनों अल्काइल हैलाइड से आ रहे हैं, सेम से आ रहे हैं, सेम से आ रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड, मतलब ये वाला RX इस रिएक्शन में अपने RX से रिएक्ट नहीं कर सकता, इस वाले रिएक्शन डाई अल्काइल लिथियम। इसके लिए वो कह रहा है कि इस वाले केस में यू कैन प्रिपेयर सिमेट्रिकल अल्केन एज वेल एज अनसिमेट्रिकल। फॉर एग्जांपल इस वाले केस में आप, मैं आपको दिखा देता हूं, इन दिस केस you can take dimethyl lithium cuprate on one side, this compound dimethyl lithium cuprate on one side and methyl chloride on other side, sorry ethyl chloride on other side. What will the product, प्रोडक्ट क्या होगा बच्चे, मैंने कहा एक इधर से आना CI3 C2H5, you'll get this।
अगर इधर भी मिथाइल लिया होगा तो मिथाइल मिथाइल आना। तो यू कैन प्रिपेयर सिमेट्रिकल अल्केन, मिथाइल मिथाइल सिमेट्रिकल, मिथाइल इथाइल अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल as well as unsymmetrical alkane. R and R dash may be same, may be different. सॉल्वेंट यहाँ भी यूज हुआ बच्चे ट्राई। एक साइड देखिए उसने R रखा है, एक साइड क्या रखा है R, और इस रिएक्शन का नाम क्या है बच्चे, कोरे-हाउस रिएक्शन। रिएक्शन इज कॉल्ड एज कोरे-हाउस रिएक्शन। आज हम यहीं तक इसको स्टडी करते हैं, मिक्स अप हो जाएगा अदरवाइज। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इसके एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस प्लस सम अदर रिएक्शंस हमने स्टडी किए। मिसलेनियस क्या लें उनको, जैसे रिएक्शन विद मैग्नीशियम, रिएक्शन विद सोडियम एंड कोरे-हाउस रिएक्शन। यहाँ पे हम अपने जो वीडियो है उसको विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच।